Hello friends, welcome back to my channel. Today we have come to the end of the chapter 4, molecular basis of inheritance, the last topic 4.10. We are going to learn today, that is DNA fingerprinting. And ये जो technique है, this technology is the second most important technology which has been developed by human according to the Times magazine. The first important technology जो human ने discover किया था या develop किया था, that is the nuclear fission technique, that is the splitting of atom, and second technique was to identify the DNA of an individual with the help of technique जिसको DNA fingerprinting कहते हैं, लेकिन it has got other names also. तो basic name है, जो basic term है, that is the DNA technology. Technology by which DNA of an organism is identified, okay. और इसके almost unlimited you can see potentials है, okay. इसके बारे में हम लोग basic तरीके से देखेंगे, okay, इस topic में. चलिए, तो DNA fingerprinting में DNA you can see जो सबसे इम्पोर्टेंट यू कैन सी टर्म यूज किया गया है, एंड वी नो डीएनए इज द मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ, बिकॉज किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसका जो भी बिहेवियर एस्पेक्ट है, वो सब डीएनए में छुपा होता है, एज वी नो इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट जिसको जीन्स कहते हैं. बट डीएनए इससे और भी ज्यादा यू कैन सी काम करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ओके. सो डीएनए के बारे में जेम्स वॉटसन ने कहा है, द मॉलिक्यूल इज सो ब्यूटीफुल इट्स ग्लोरी वाज रिफ्लेक्टेड ऑन फ्रांसिस एंड मी, बिकॉज वॉटसन एंड क्रिक with the help of you can see the observation of Francis, okay, उन्होंने डीएनए मॉडल तैयार किया था पहली बार, जिसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, ओके. The blueprint, so DNA has a blueprint, that is the genetic information, okay, in the form of DNA sequences, और इस सीक्वेंस में ही प्रोटीन बनाने का पूरा इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है in every DNA, and it is a job of DNA to control the order in which these 20 different amino acids are put together to form specific protein. So as we have learned, you can see in you can see encryption and translation, DNA का information mRNA में transcribe होता है और उसका translation होके specific protein तैयार किया जाता है, and this protein actually controls the different functions and structures of a living organism. तो ultimately अगर DNA का information अगर damage हो गया या change हो गया, तो it will ultimately affect the formation of protein. This will affect the you can see what characteristic of the organism. इसके लिए every key information is actually present in the DNA, okay. And that's why human actually proposed, okay, launch किया था you can see human genome project to learn each and every or find each and every gene present in the human, and till today 33,000 gene has been you can see identified. But the same DNA, okay, apart from the gene, it has got certain specific regions जिनको अगर हम लोग identify करेंगे तो that will help in identification or comparison between two different organisms, okay, in including the humans. वो कैसे होता है, और उसी टेक्निक को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं. तो इट इज अ एरा ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग डीएनए के जरिए एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कैन बी यू कैन सी एक्सट्रैक्टेड, ओके. So this is a little cartoon which we have learned you can say last time also. तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स है, दैट क्रोमोसोम कंटेन दिस मार्वलस मॉलिक्यूल कॉल्ड डीएनए, and any type of organism can be identified by examination of DNA sequences which is very unique to that species. यानी कि अगर आपके पास कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल है, किसी भी प्लांट एनिमल माइक्रोब का छोटा भी सब यू कैन सी लिविंग यू कैन सी मटेरियल है जिसमें डीएनए अगर है, तो उस डीएनए को एनालिसिस करके वी कैन आइडेंटिफाई दैट ऑर्गेनिज्म कि ये एक्चुअली किस लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है पार्ट है, ओके. तो इस तरह कैन से इसका सबसे बड़ा यू कैन से यूज जो होता है वो होता है फॉरेंसिक मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, जो लास्ट में देखेंगे. चले, सो हाउ डीएनए टेक्नोलॉजी बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन. तो वी नो लर्न किया था जब हम जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ रहे थे कि डीएनए ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लैनेट इज 99.9% द सेम, ओके. दैट इज, उसका मतलब यह है कि 0.1% डीएनए की वजह से इतना सारा डिविएशन, इतना सारे डिफरेंसेस और डाइवर्सिटी अमंग द लिविंग इन द ह्यूमन यू कैन सी प्रोड्यूस होता है इन टर्म्स ऑफ कलर्स, शेप, साइज, हर चीज में. तो 99.9% डीएनए एग्जैक्ट सेम है, तो बचा हुआ दैट 0.1% यू कैन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी 0.1% पे फोकस करके हम लोग एक पर्सन को दूसरे पर्सन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड दैट टेक्निक इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. बिकॉज जस्ट लाइक no two person has exactly the same fingerprint, उसी तरह no two person will have the same DNA you can see what composition, okay.
सो ओनली द आइडेंटिकल ट्विंस, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस, उन्हीं का डीएनए 100% क्या है, सेम रहेगा। ओके चलिए, सो दिस इज डीएनए मॉलिक्यूल। सो द बेसिक एक ऐसी जो टर्म यूज करता है जो सबसे कॉमन है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बट दिस सेम टेक्निक इज आल्सो कॉल्ड प्रोफाइलिंग। जैसे आप अपना बायोडाटा जब तैयार करते हो तो आप अपने इसमें डिटेल लिखते हैं, दैट इज योर प्रोफाइल। ओके, इसको डीएनए रेस्ट्रिक्शन एनालिसिस भी कहते हैं, बिकॉज द टेक्निक बाय विच द डीएनए इज एनालाइज्ड is the restriction process. Restriction मतलब to cut the DNA with the help of specific REN, restriction endonuclease, जो बायोटेक्नोलॉजी में आपने सीखा होगा। इसको बेसिकली डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, और सबसे मॉडर्न टर्म जो यूज किया है वो है दिस इज डीएनए बार कोडिंग। जिस तरह यू कैन सी इन एवरी यू कैन सी आर्टिकल जो आज यू कैन सी मैन्युफैक्चर होता है, उसके पैकेट पे देयर इज अ बार कोड, एंड द बार कोड ऑफ एवरी आइटम इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। विद द हेल्प ऑफ बार कोड यू कैन आइडेंटिफाई दैट यू कैन सी प्रोडक्ट, उसका रेट, उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एवरीथिंग कैन बी यू कैन सी व्हाट आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ बार कोडिंग स्कैनिंग। तो उसी तरह आप अगर डीएनए को, किसी पर्सन के डीएनए को स्कैन करेंगे तो उससे हम लोग उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं मोस्ट एक्यूरेटली। दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए बायोलॉजिकल मटेरियल ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। And what the Time magazine has said about this technology, the DNA technology, according to Times magazine, is the most powerful tool, okay, after the splitting of atom. यानी कि we learned how to split the atom, that is nuclear fusion, और उसी से naturally nuclear reactions हम लोग कर पाए, जिससे energy का एक नया source we were able to you can see what develop। तो उसके बाद जो DNA technology है, okay, that is the most awesome you can see what tool। चलिए, तो अब देखते हैं हाउ टू डिफाइन ए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, द टेक्नोलॉजी व्हिच इज डेवलप्ड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स using DNA restriction analysis। तो this technique is the restriction you can see digestion, इसके लिए restriction analysis को कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, या इससे ही हम लोग डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। तो जस्ट लाइक फिंगरप्रिंटिंग कंपैरिजन, ओके, नो टू पर्सन हैज द सेम फिंगरप्रिंट, तो सेम वे नो टू पर्सन विल हैव द सेम डीएनए व्हाट पैटर्न। चलिए, so what you can say, it is a technique, or simple terms में it is a technique to understand the nature of DNA in each individual, इसे DNA profiling भी कहते हैं, because if you compare the DNA of two different individuals, उसके pattern में आपको difference मिलेगा। okay, so just like fingerprints of no two person is exactly same, in the same manner DNA pattern of no two person is exact same। तो खाली एक ही कंडीशन में सेम होता है, दैट इज द मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस का डीएनए एकदम एग्जैक्ट सेम रहेगा। ओके चलिए, तो पहले थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट डेवलप, ये जो टेक्निक है डेवलप कब हुआ, 1984, यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसके पहले ये टेक्निक डेवलप हो गया था, एंड दैट्स व्हाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के टेक्निक को ही यूज करके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बेसिक यू कैन सी व्हाट प्रोसेस को कंप्लीट किया गया। तो इट वाज डन बाय ब्रिटिश जेनेटिस्ट एलेक जेफरी। तो दिस पर्सन इज एलेक जेफरी, इन्होंने ये टेक्निक डेवलप किया बेसिकली टू एनालाइज द डीएनए, ओके, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लैनचेस्टर व्हेन ही वाज स्टडीइंग द जीन। तो एक जीन के बारे में वो स्टडी कर रहे थे, मायोग्लोबिन जीन को एक्सट्रैक्ट करने के एक ऐसे प्रोसेस में ही आइडेंटिफाई द टेक्निक, इसी टेक्निक को यूज करके हम लोग बाकी पूरे इंटायर डीएनए को भी एनालिसिस कर सकते हैं। ओके चलिए, अब देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। ओके, व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू। डीएनए में पूरा डीएनए स्टडी करना है कि डीएनए के पर्टिकुलर पार्ट को स्टडी करना है, बिकॉज एज वी हैव लर्न कि 99.9% डीएनए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का हर ह्यूमन का एग्जैक्टली सेम होता है। तो वी डोंट हैव टू फोकस ऑन ऑल द डीएनए, वी हैव टू एक्चुअली फोकस ऑन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द डीएनए, ओके, व्हिच इज शोइंग डिफरेंशियल यू कैन सी पैटर्न इन एवरी ह्यूमन। ओके, तो वही है बेसिक प्रिंसिपल, देखते हैं वो प्रिंसिपल क्या है। So DNA fingerprinting is based on identification of specific nucleotide sequence, जिसको कहते हैं VNTRs, which are present on the DNA molecule. So we don't have to, you can see what, analyze the entire DNA. Okay, we have to analyze only a part of the DNA, जिसको कहते हैं VNTRs. So very specific, you can see what discovery ये हुआ था। ओके, क्योंकि पूरे डीएनए में हमारे हर ह्यूमन के सारे डीएनए में स्पेशल you can see what न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। अगर इन्हीं को अगर कंपेयर करेंगे तो you will find the difference in the pattern,
and that can be used for identification of DNA of one person, the DNA other person, तो उससे एक person का accurate identification हो सकता है. So what are these specific nucleotide sequence? So in a population, every person shows unusual nucleotide sequence of 20 to 100 base pairs which are repeated several times. और ये वो सीक्वेंस है जो जीन का यू कैन सी पार्ट नहीं है. इट इज नॉट द पार्ट ऑफ जीन, मतलब इट डज नॉट कोड फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोटीन, इट डज नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन. ओके, इट इज नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ द डीएनए, लेकिन वो बहुत ही स्पेशल है, रिपीट होते रहते हैं. ओके, सीक्वेंसेस जो 20 से 100 बेस पेयर लंबे हो सकते हैं. ओके, so they are therefore termed as V and TR. तो उनको V and TR कहते हैं. तो what is the full form of V and TR? Let's say that is variable number of tandem repeats. Variable मतलब उनका जो नंबर है, ओके, वो अलग है. वेरिएबल मतलब डिफरेंट, टैंडम मतलब दे आर नॉट फिक्स्ड. तो एवरी ह्यूमन में इट इज रिपीटेड, यू कैन सी व्हाट डिफरेंटली, इसके लिए टैंडम रिपीट्स कहते हैं. ओके, वी एंड टी आर को नॉर्मली टैंडम रिपीट्स भी कहते हैं. ओके, तो वी एंड टी आर इज द टर्म यूज्ड फॉर सच यूनिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जो हर इंडिविजुअल में जो इसका सीक्वेंस रहेगा वो डिफरेंशियली क्या होगा, रिपीट रहता है. तो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. चलिए, तो वी एंड टी आर का भी डेफिनेशन क्या है? तो दे आर अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ 20 to 100 बेस पेयर का डेफिनेशन आ गया. व्हाट इज वी एंड टी आर? सो दे आर अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ 20 to 100 बेस पेयर व्हिच आर रिपीटेड सेवरल टाइम्स इन ए पर्टिकुलर बट इन ए डिफरेंट मैनर. ओके, इसके लिए उनको वी एंड टी आर कहते हैं. अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ 20 to 100 बेस पेयर व्हिच आर रिपीटेड सेवरल टाइम्स टैंडमली. एंड इन वीएनटीआरस को सबसे पहले विजमन एंड वाइट ने डिस्कवर किया था. और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, व्हाई वीएनटीआर ओनली? डीएनए में तो और भी बहुत सारे कंपोनेंट रहेंगे, जीन्स हैं, लेकिन उनको क्यों नहीं यूज किया जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सिमिलर सेट ऑफ वीएनटीआर इन एनी टू पर्सन इज 1 in 300 million. यानी कि किसी भी दो पर्सन में एक जैसा वीएनटीआर पैटर्न होने का चांस खाली 1 in 300 billion होगा. ओके, so that's why it is one of the most accurate way of identification of any human. ओके, और लेंथ ऑफ द रीजन जो बोला, हैविंग वीएनटीआर इन डीएनए ऑफ एवरी पर्सन इज डिफरेंट इन एवरी इंडिविजुअल. अभी हम लोग एग्जांपल के जरिए रिप्रेजेंटेशन करके देखेंगे हाउ व्हाट इज वीएनटीआर. इसका मतलब है कि वीएनटीआर एनालिसिस यानी कि आपको पूरा डीएनए एनालिसिस नहीं करना है, तो डीएनए का वही पार्ट एनालिसिस करना है जहां पे वीएनटीआर होते हैं. So that's why it is the principal or key factor of DNA fingerprinting. यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेस्ड ऑन VNTR एनालिसिस. तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द की ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? तो राइट, VNTR, उसका फुल फॉर्म भी पूछा सकता है. ओके, जब एमसीक्यू पूछेंगे तो नीचे VNTR को डिफरेंट फॉर्म में वैकेंसी आपको पूछा जाएगा. तो यू हैव टू राइट VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. ओके, चलिए, तो VNTR इज अ की फैक्टर. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि सपोज एक VNTR सीक्वेंस है GATA. ओके, GATA एंड यू कैन सी, तो देयर आर 3 सैंपल्स यहाँ पे दिया हुआ है, 3 सैंपल्स. ओके, तो फर्स्ट सैंपल में GATA 8 बार रिपीट हो रहा है कंटिन्यूअसली, सेकंड सैंपल में 9 बार रिपीट हो रहा है, और थर्ड सैंपल में 10 बार रिपीट हुआ है. यानी कि सपोज द सैंपल A इज फ्रॉम 1 पर्सन, सैंपल 2 इज फ्रॉम सेकंड पर्सन एंड सैंपल 3 इज फ्रॉम थर्ड पर्सन. ओके, तो उसमें सैंपल 1 में GATA ये सीक्वेंस GATA गाटा 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 ये 8 बार रिपीट हो रहा है. तो हर पर्सन में ये तो खाली एक वैकेंसी, खाली एग्जांपल है कि एक क्रोमोसोम या एक डीएनए पे हमारे पास हर सेल में ये होते हैं 46 डीएनए, क्योंकि 46 क्रोमोसोम, एवरी क्रोमोसोम रिप्रेजेंट वन डीएनए मॉलिक्यूल. ओके, तो अलग अलग डीएनए में अलग अलग वैकेंसी व्हाट जो आपके क्रोमोसोम्स हैं उसमें ये जो VNTR है उसका सीक्वेंस अलग अलग रहेगा, उसके रिपीट्स अलग अलग रहते हैं, और इसी बेसिस पे हम लोग दो ह्यूमंस को कंपेयर कर सकते हैं एक्यूरेटली. So here the sequence you can see GATA is repeated differently in 3 different samples of what? DNA. This is only the representation. Okay. चलिए, और GATA जो अभी खाली एग्जांपल लिया है, GATA को हमने खाली एग्जांपल जैसे यूज किया है. ओके, तो उसके बारे में फिर से हम लोग देखेंगे. ओके, when we will learn the technique of VNTR steps. Now, तो मैंने VNTR, तो VNTR का भी एक इंपॉर्टेंस क्या है? आर द डीएनए सेगमेंट दैट वेरी इन साइज एंड कंपोजिशन हैव नो अपरेंट फंक्शन, एंड दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड मिनी सैटेलाइट्स, क्योंकि जनरली वो एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के एंड्स में होते हैं. ओके, या एक पर्टिकुलर यू कैन सी फिक्स्ड रीजंस में होते हैं. ओके,
सो फॉर एग्जांपल ये दिख रहा है आपको, यू कैन सी क्रोमोसोम, दिस इज अ क्रोमोसोम, और इस हिस्से में यू कैन सी जो आपका डीएनए है उसमें यहाँ पे VNTR रीजन है, तो यहाँ पे 1 2 3 आर, यानी कि सपोज दिस इज यहाँ पे सेम GATA 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 रिपीट 4 बार हो रहा है, ओके। तो इट कैन बी मोर देन 4, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 टाइम्स इट इज रिपीटेड। किसी दूसरे एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे 4 बार रिपीट हो रहा है। तो एवरी यू कैन सी ह्यूमन में अलग अलग क्रोमोसोम में वो अलग अलग पैटर्न से रिपीट होगा, ओके। तो नो टू यू कैन सी व्हाट पर्सन कैन हैव द एग्जैक्टली सेम पैटर्न फॉर ऑल द VNTRs, ओके। और इन VNTRs को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इन्हीं VNTRs को यूज करते हैं, विच आर कॉल्ड मिनी सैटेलाइट्स। तो VNTR को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको VNTR ही चाहिए, ओके। वो कैसे, हम लोग किसी जब टेक्निक देखेंगे DNA फिंगरप्रिंटिंग के, दैट इन दैट यू कैन सी पार्ट आई विल यू कैन सी एक्सप्लेन, क्योंकि इंडिया में जिस पर्सन ने नेचुरली DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को डेवलप किया, he used the you can say VNTR, the mini satellites, okay, which acts as a DNA probe. The DNA probe मतलब एक छोटा सा सेगमेंट, डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट जो corresponding you can see complementary DNA sequence को आइडेंटिफाई कर सकता है, ओके। तो they are used as DNA probe to find with the specific VNTR, और उसी से जितने भी you can see डीएनए के सेगमेंट्स तैयार होंगे उनमें खाली VNTR वाले सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करके हम लोग एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं। तो डोंट हैव टू एनालाइज द एंटायर डीएनए, only the specific you can see DNA parts can be identified more accurately, okay। चलिए अब देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए बेसिकली कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स है, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन डिटेल द डीएनए फिंगर टेक्नोलॉजी इन मोर डिटेल, साथ में उसका एप्लीकेशन पार्ट भी जो है वो डिटेल में देखेंगे। आज हम लोग बेसिक यू कैन सी व्हाट टेक्निक देखेंगे। तो बेसिक रिक्वायरमेंट, सबसे पहले आपको डीएनए सैंपल चाहिए, ओके। तो दिस इज द एग्जांपल। फिर पीसीआर मशीन, तो पीसीआर मशीन क्यों चाहिए, कि समटाइम द डीएनए सैंपल व्हिच इज अवेलेबल, ओके, इट इज वेरी लेस एंड समटाइम यू हैव टू रिपीट द टेस्ट फॉर कंफर्मेशन, ओके। तो इसके लिए क्या किया जाता है, पीसैट टेक्निक जो आपको मालूम है, उससे मल्टीपल मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए कैन बी प्रोड्यूस्ड, ओके। और हम लोग डीएनए को फिर स्टोर करते हैं ताकि फ्यूचर में अगर रिक्वायर हुआ तो फिर से टेस्ट करके डीएनए को कंपेयर किया जा सके। We have got specific REN enzyme. This is very important because we are going to cut DNA with the help of specific REN. तो ये REN DNA को इस तरह कटे करेगा ताकि VNTR वाले जो टुकड़े हैं वो सेपरेट हो जाए, ओके। और भी टुकड़े सेपरेट होंगे लेकिन VNTR वाले जो सेगमेंट्स हैं वो सेपरेट होने चाहिए, ओके। तो उसके लिए स्पेसिफिक REN एंजाइम यूज किया जाता है। फिर जितने भी DNA के पीसेस तैयार होंगे, ओके, तो उनको सेपरेट करने के लिए टेक्निक यूज किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके लिए लगता है एगारोस जेल, स्पेशल जेल प्रोड्यूस बाय रेड एल्गी, और साथ में इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट, द प्रोसेस यू कैन सी बाय विच डीएनए फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय यू कैन सी क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिकल यू कैन सी व्हाट चार्ज, उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट कहते हैं। फिर जेल में जो डीएनए सेपरेट हुआ, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि जेल जो आपका दिख रहा है उसमें डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स वो सेपरेट हुए हैं उनको फिर ट्रांसफर किया जाता है इन ए नाइट्रोसेलुलोज पेपर या नाइलॉन मेम्ब्रेन में, ओके। फिर ड्राई फिल्टर पेपर चाहिए फॉर एब्जॉर्प्शन पर्पस। फिर नेचुरली इन सारे सेगमेंट्स में ये जितने भी डीएनए के बैंड्स तैयार हुए हैं उसमें अलग अलग फ्रेगमेंट्स हैं, उनमें से वीएनटीआर वाले जो फ्रेगमेंट्स है, वीएनटीआर वाले फ्रेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए रेडियो लेबल्ड, ओके, रेडियो एक्टिव यू कैन सी डीएनए प्रोब्स जो आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है फ्रॉम मिनी सैटेलाइट्स, ओके, उसको यूज किया जाता है। और फिर एक्सरे फिल्म एंड मशीन, क्योंकि जहां जहां पे रेडियो लेबल डीएनए प्रोब स्टिक हो जाएगा तो उस हिस्से का डीएनए यू कैन सी व्हाट मार्किंग यू कैन सी एक्सरे फिल्म पे आ जाएगा, क्योंकि उसी पार्ट से क्या है रेडिएशन रिलीज होके एक्सरे पे उसका एक क्या है पिक्चर आ जाएगा। एंड दैट्स व्हाई कैन सी वी कैन स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई द डीएनए फ्रेगमेंट्स हैविंग वीएनटीआर। टारगेट क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर गिवन जो डीएनए सैंपल में है उसमें से वीएनटीआर सेगमेंट्स को क्या है आइडेंटिफाई करना है और उसको फिर दूसरे सैंपल से कंपेयर करना है। चलो, तो दिस आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बेसिक स्टेप्स देखेंगे, ओके। तो पहला स्टेप है डीएनए आइसोलेशन। हम लोग डीएनए को आइसोलेट करेंगे लास्ट पार्ट में, ओके। पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, लास्ट पार्ट में आई विल गिव द समरी आल्सो। तो डीएनए को आपको आइसोलेट करना है फ्रॉम द गिवन सैंपल, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, उसको डीएनए एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। फिर डीएनए को आपको कट करना है विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। तो दिस इज द मोस्ट यू कैन सी इंपॉर्टेंट स्टेप। उसके बाद में जो
फ्रेगमेंट्स तैयार होंगे उनको आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए सेपरेट करना है. देन वी हैव टू ट्रांसफर the DNA fragments from the gel onto the paper. That is, I can see what nylon paper पे, membrane पे, nitrocellulose paper पे ट्रांसफर करना है. उसको सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं. टेक्निक डेवलप बाय सदर्न. एंड देन उनमें से जितने भी फ्रेगमेंट सेपरेट हुए उनमें से आपको खाली VNTR वाले सेगमेंट्स को क्या है आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए प्रोब यूज किया जाता है जो रेडियो एक्टिव होता है. फिर इस प्रोसेस से तैयार होता है एक स्पेशल डीएनए जिसको हाइब्रिड डीएनए कहते हैं, जिसमें होता है आपका एक VNTR सेगमेंट एंड द डीएनए प्रोब जिसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. और कौन कौन से वैकेंसी रीजन में हाइब्रिडाइज्ड डीएनए है, मतलब VNTR वाला वैकेंसी डीएनए है, उसके लिए हम लोग एक्सरे फोटोग्राफी करते हैं. मॉडर्न टेक्निक जो अभी न्यू टेक्निक उसमें फ्लोरेसेंट टेक्निक भी है जिसमें वैकेंसी ग्लो होता है अंडर वैकेंसी अल्ट्रावायलेट रेज में क्या होगा VNTR वाले सेगमेंट्स क्या होते हैं ग्लो होते हैं. तो इसी टेक्निक को मॉडिफाई करके अलग अलग मेथड से डीएनए का फाइनल प्रिंट तैयार होता है फोटोग्राफी. चलिए, so this is one of the example of the DNA fingerprint जिसमें 15 samples जो है 15 we can see identify यहाँ पे 1 2 3 जो लिखा हुआ है they are 15 samples of the given DNA okay was actually separated using the gel electrophoresis और उनका फिर final print ये आ गया है. ओके चलिए अभी हम लोग डिटेल में हर स्टेप को देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में. ओके और नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली ये जो टेक्निक है स्टेप्स जो है इसको और थोड़ा सा हम लोग एनिमेटेड तरीके से देखेंगे. ओके तो सबसे पहला काम है कि डीएनए को आइसोलेट करना है, सेपरेट करना. बिकॉज तो डीएनए आइसोलेट कैसा होगा फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल जिसमें न्यूक्लियस होना चाहिए या क्रोमोसोम होना चाहिए. ओके तो द डीएनए इज रिकवर्ड फ्रॉम द अवेलेबल बायोलॉजिकल मेथड. तो दे आर स्टैंडर्ड you can see मेथड होता है जिसमें डीएनए को आइसोलेट किया जाता है. ओके दैट इज प्रैक्टिकल. इन प्रैक्टिकल आल्सो यू हैव गॉट you can see the method of DNA isolation. इसका बनाना का डीएनए आइसोलेशन किया जाता है. बहुत इजी टेक्निक है, आप घर पे कर सकते हो. उस पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है. ओके तो इफ यू वांट यू कैन डू दैट एट होम आल्सो. ऑल द मटेरियल्स आर अवेलेबल एट होम प्रेजेंटली. ओके यू कैन डू इट. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि उस सोल्यूशन में जो फाइनल बनता है उसमें ऊपर यू कैन सी एक स्लिपरी यू कैन सी और फाइब्रस मटेरियल तैयार हो जाएगा जो एक्चुअली डीएनए है. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. यू कैन ट्राई, यू कैन ऑल ट्राई. तो मेनली जो मटेरियल है उसमें सेल्स या बॉडी टिश्यूज होने चाहिए. ओके जैसे सबसे स्टैंड अगर किसी पर्सन का आपको सैंपल लेना है किसी डीएनए वेरिफिकेशन के लिए उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है. और ब्लड में जनरली जो WBC है इज द सोर्स ऑफ डीएनए क्योंकि RBC और प्लेटलेट्स में आपका डीएनए नहीं होता है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. तो इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है. फिर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यूज अगर आप कोई केस है ओके तो कहीं से भी दिखेगा जैसे फॉरेंसिक्स में कोई मिस्ट्री सॉल्व करना है, कोई एक्सीडेंट हो गया है या कहीं पे कोई क्राइम हो गया तो वहाँ पे क्राइम सीन में जो भी यू कैन सी व्हाट मटेरियल्स मिलता है. ओके बायोलॉजिकल मटेरियल मिलता है जैसे ब्लड मिल सकता है, हेयर रूट्स बाल मिलेगा, स्किन का थोड़ा सा सैंपल मिलेगा या सलाइवा सीमेन. ओके रेप केसेस में सीमेन सैंपल्स को भी चेक किया जाता है. ओके तो कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल जैसे दिस इज द ब्लड स्टेन. ओके एक क्राइम सीन से ऑब्टेन किया जा रहा है. दिस इज द सलाइवा का स्वैब. आपको मालूम है इवन यू कैन सी फॉर कोरोना टेस्टिंग सलाइवा का स्वैब लिया जाता है या थ्रोट स्वैब लिया जाता है. ओके जिसमें सलाइवा का आंसर होता है, साथ में यू कैन सी इनर लाइनिंग जो स्किन होता है वो भी होता है. एंड दिस इज द सीमेन एंड सीमेन कंटेन्स द स्पर्म्स. ओके द स्पर्म हैज द यू कैन सी व्हाट गैमेट्स सॉरी द न्यूक्लियस जिसमें क्रोमोसोम होगा. देन यू गॉट हेयर रूट. बी केयरफुल. हेयर का जो स्ट्रैंड पार्ट है द स्ट्रैंड पार्ट इज ऑफ नो यूज. अगर आपको कोई बाल का सैंपल मिला जिसमें खाली स्ट्रैंड है इट इज ऑफ नो यूज क्योंकि दिस इज द डेड पार्ट ऑफ द हेयर जिसमें डीएनए नहीं होगा. बट अगर रूट आपको मिला है तो दैट रूट विल कंटेन द हेयर फॉलिकल जिसमें सेल्स होते हैं जिसमें डीएनए होगा. एंड देन यू कैन सी यू कैन स्किन टिश्यू. कभी कभी कोई क्राइम में क्या होता है ओके आपको स्किन का थोड़ा पील मिलेगा आपको तो उससे भी नेचुरली क्या है आप डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. कभी कभी कोई सीवियर एक्सीडेंट होता है तो बॉडी पार्ट्स गेट्स यू कैन से डिसइंटीग्रेटेड. ओके तो उस टाइम पे भी टिश्यू का छोटा सा पार्ट भी जो है दैट इज इनफ फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑफ डीएनए. और फिर जो डीएनए आइसोलेट होता है उसको फिर प्यूरिफाई किया जाता है. ओके मतलब बाकी के कंपोनेंट जो सेल के हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट ये सब यू कैन सी आपको सेपरेट करना है. आपको खाली डीएनए चाहिए. इवन आरएनए विल इंटरफियर तो ओनली डीएनए यू कैन सी रिक्वायर्ड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. तो दिस इज व्हाट डीएनए आइसोलेशन. उसके बाद में क्या करेंगे डीएनए एम्पलीफिकेशन. मतलब डीएनए का अमाउंट आपको यू कैन सी बढ़ाना है. ओके तो उसके लिए पीसीआर टेक्निक इज यूज्ड टू ऑब्टेन मल्टीपल डीएनए. तो द डीएनए ऑब्टेन फ्रॉम ए स्मॉल बायोलॉजिकल सैंपल इज वेरी लेस. यानी कि आपको एक कहीं पे अगर छोटा सा ब्लड सैंपल मिला है ओके छोटा सा ड्रॉप तो उसमें जो डीएनए होगा इट विल वेरी लेस. ओके तो इट कैन बी
और सिंगल सैंपल से खाली आप एक बार ही टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको शायद बार बार टेस्ट रिपीट करना है, ओके, इफ इट गोज फॉर ए लीगल एजेंसी व्हाट प्रोसेस, तब इसके लिए पीसीआर टेक्नोलॉजी से मल्टीपल कॉपीज बनाया जाता है। तो दिस इज पीसीआर मशीन, एंड बाय पीसीआर मशीन फ्रॉम ए सिंगल गिवन डीएनए, एक सिंगल गिवन डीएनए भी अगर आपके पास है तो आप उसको पीसीआर टेक्निक यूज करके मल्टीपल कॉपीज तैयार करते हैं। सम ऑफ द डीएनए स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर पर्पस एंड द रिमेनिंग डीएनए इज यूज्ड फॉर एनालिसिस। उसके बाद में यहाँ से अभी एक्चुअल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है कि वॉट एवर डीएनए वी हैव गॉट नाउ, उसका फिर फ्रेगमेंटेशन किया जाता है। इट इज ब्रोकन इनटू पीसेस विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये जो हेडिंग आपको दिख रहा है, दिस इज ऑफ द सिंपलेस्ट हेडिंग जो आप लिख सकते हैं अगर आपको शॉर्ट में क्वेश्चन आ गया स्टेप्स और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हर जो स्टेप हमने अभी डिस्कस किया था, ओके। तो डीएनए फ्रेगमेंटेशन के रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन टेक्निक यूज करता है यूजिंग restriction endonuclease as we have learned in biotechnology, okay। तो उसमें क्या कहते हैं, डीएनए is subjected to restriction digestion, for example this is one of the given डीएनए, okay। तो ऐसे तो हमारे पास एक ह्यूमन का सैंपल लेंगे तो 46 डीएनए मिलेगा आपको, क्योंकि देयर आर 46 क्रोमोसोम अलॉन्ग विद द माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए, तो टोटल 47 डीएनए होता है इन ट्रू सेंस। तो इस डीएनए को सपोज दिस जो इस डीएनए के साथ होगा वही बाकी सब डीएनए के साथ भी होगा, ओके। तो स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन endonuclease, that is REN, is used to cut DNA into small fragments. Suppose this is the REN, ये REN DNA को इन पॉइंट्स पे काटने वाला है, ओके। तो इट विल कट, then this will also cut and this will also cut। तो तीन पोजीशन पे काटने की वजह से नाउ दिस डीएनए विल गिव राइज टू 4 फ्रैगमेंट्स, और हर फ्रैगमेंट जो है उसका लेंथ अलग अलग रहेगा, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट सम ऑफ दिस यू कैन सी डीएनए फ्रैगमेंट्स विल हैव वीएनटीआर, बिकॉज हम लोगों ने आरईएन ऐसा चूज किया है कि वो वीएनटीआर वाले पीसेस को क्या है सेपरेट कर देता है, ओके। और इस फिनोमेना को कहते हैं आरएफएलवी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द यू कैन सी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। आरएफएल क्या है, इज द रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब ओके जब रेस्ट्रिक्शन किया जाता है, दिस इज अ टेक्निक, हम लोग डीएनए को आरएन के जरिए कट कर रहे हैं, तो उससे जो पीसेस तैयार हुए हैं, ओके, उनका लेंथ हर पर्सन में अलग अलग रहेगा, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। मॉर्फो मतलब स्ट्रक्चर, ओके। एंड इसी टेक्निक की वजह से डीएनए एनालिसिस बिकम्स वेरी एक्यूरेट, ओके। चलिए नाउ अब जो फ्रेगमेंट्स हमको मिले हैं, ओके, तो न्यूमरस फ्रेगमेंट्स विल बी, अगर जगह हमारे पास 47 डीएनए है, 46 डीएनए ऑफ द न्यूक्लियस एंड 47th डीएनए इज इन द माइटोकॉन्ड्रिया, इन सबको अगर एक ऐसी तीन तीन पीसेस भी कट करेंगे या दो पीसेस भी अगर हर एक का कट होगा तो 47 इंटू 2 हो गया 90, एक ऐसी 4 पीसेस तैयार हो सकते हैं, ओके। अगर खाली दो ही अगर पीसेस बने तो दो से बहुत ज्यादा बनते हैं, ओके। अगर दो भी कंसिडर करेंगे तो 96 पीसेस बनेंगे, एंड एवरी पीस विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो इनको अभी सेपरेट करना है, ओके। तो उसके लिए जो टेक्निक यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। स्पेशल जेल में हम लोग डीएनए को लोड करेंगे फ्रॉम वन एंड, एंड बाय पासिंग द इलेक्ट्रिकल करंट, यानी कि इलेक्ट्रिकल यू कैन सी अबाउट पोटेंशियल, ये दोनों एंड पे रखने के बाद, ओके, द फ्रैगमेंट्स विल गेट स्टार्ट सेपरेटिंग। उसका कारण क्या है, क्योंकि डीएनए जो है बीइंग एसिडिक नेचर, इट इज what negative charge, तो वो पॉजिटिव यू कैन सी टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, एंड द मूवमेंट विल डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट, ओके। सो तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड टू सेपरेट डीएनए, दैट इज आरएफएलपी फ्रैगमेंट्स। तो दिस इज द जेल, द अगारोस जेल है ये, ओके। तो उसको तैयार किया जाता है। तो जेल इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोफोरेसिस अंडर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन्फ्लुएंस। तो देखिए ये आपका सेटअप है, तो देयर इज अ ग्लास प्लेट, दो ग्लास प्लेट है, दिस इज वन ग्लास प्लेट और पीछे की तरफ दूसरा ग्लास प्लेट है, ओके। और दोनों के बीच में जेल, जो एक आपका लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है दैट इज जेल, जिसमें नेचुरली वेल्स तैयार किया जाता है फॉर पुटिंग द डीएनए सैंपल। तो इन द प्रेजेंट जेल यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 7 सैंपल्स ऑफ डीएनए कैन बी लोडेड। तो एक जो डिप्रेशन जैसा दिख रहा है, वेल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो उसमें हम लोग अलग अलग डीएनए सैंपल को ऐड कर सकते हैं, ओके। एंड देन द लोडिंग पॉइंट जहाँ पे लोड किया है दैट इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एंड जो अपोजिट एंड है वहां पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या है अटैच किया जाता है, ओके। तो एक इलेक्ट्रिकल डिफरेंस पोटेंशियल क्रिएट हो गया है, and then the DNA fragments being negatively charged, okay, because DNA is basically acidic and acidic molecules are generally having negative charge, they will start moving towards the positive। तो ये सारे loaded DNA जो है, जितने भी fragments है, they will start moving towards the positive you can see electrode, और इस process में they will get separated from each other, okay। So loading and separation हो रहा है,
एंड ड्यू टू डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट ईच फ्रेगमेंट मूव्स एट अ डिफरेंट स्पीड। तो लॉन्गर फ्रेगमेंट जो है वो फास्टर स्पीड से जाते हैं, क्योंकि लॉन्गर रहेगा तो चार्ज ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा चार्ज रहेगा तो नेचुरली द स्पीड विल बी फास्टर। एज अ रिजल्ट सेपरेट डीएनए बैंड्स आर फॉर्म। तो जितना भी डीएनए, तो यहाँ पे एन सैंपल ऐसे दिखाया है कि हर डीएनए फ्रेगमेंट के छः छः कैन से स्टैंडर्ड जो तरीका है, स्टैंडर्ड जो तरीका है उसमें छः, कम से कम छः बैंड तैयार होता है। देखो इस सैंपल के भी छः बैंड तैयार हो, 1 2 3 4 5 6, इस सैंपल का भी 1 2 3 4 5 6, तो हर सैंपल के छः छः के किसी कम बैंड्स तैयार हुए हैं। ओके, तो कम से कम छः बैंड्स तैयार होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अल्टीमेटली यू गॉट द अगारोस जेल। तो ये जो ब्लूइश आपको एक ऐसी शेड में दिख रहा है, दैट इज अ जेल, और इस जेल में डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हुआ है एंड इट इज कैन सी, जो बैंड दिख रहा है इट इज कंटेनिंग वन particular type of DNA fragment. Okay, और उनमें से some of them will contain VNTR. तो फाइनली क्या किया जाता है, तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, तो फाइनली कैन सी ट्रीटमेंट किया जाता है, द जेल इज ट्रीटेड विद अल्कली। ओके, और उसके वजह से क्या होता है कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इट सेपरेट्स इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्योंकि आपको डीएनए को आइडेंटिफाई करना है। तो डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग बनाते हैं आपका डीएनए प्रोब, जो सिंगल स्ट्रैंड का होता है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कैन बाइंड विद द कॉरस्पॉन्डिंग और कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो आपको वीएनटीआर वाले यू कैन सी व्हाट डीएनए को आइडेंटिफाई करना है, वो भी हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं। चलिए, अब तो जेल पे जो डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स, उसको फिर ट्रांसफर किया जाता है टू अनदर थोड़ा रिजिड मेम्ब्रेन। तो एक नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर या नायलॉन मेम्ब्रेन को अगर उस जेल के ऊपर रख के एक्चुअली डीएनए बैंड्स को ब्लॉट किया जाता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा है, तो नीचे का जो लेयर है, दिस लेयर इज द अगारोस जेल। ये देखो ये जेल है जो अभी हमने देखा था। इस जेल में डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हो गए होंगे, तो इसके ऊपर उसी साइज का, सेम साइज का, डायमेंशन का एक स्पेशल पेपर, दैट इज द नाइट्रोसेलुलोज पेपर, फिल्टर पेपर या नायलॉन मेम्ब्रेन को रखा जाता है केयरफुली। ओके, और केयरफुली रखने के बाद तो क्या किया जाता है, तो सबसे नीचे होता है स्पंज, ये है स्पंज, उसके ऊपर है ये जेल, दिस इज द जेल, और जेल में प्रेजेंटली दिख रहा है कि डीएनए वहां पे सेपरेट हो गया है, ओनली वन बैंड वी आर शोइंग। ओके, और उसके ऊपर फिर रखा जाता है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, और उसके ऊपर ड्राई टिश्यू पेपर रखा जाता है। तो ड्राई टिश्यू पेपर क्या करता है, सक्स द वाटर बिकॉज ऑफ द कैसी ब्लॉटिंग एक्शन, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी की वजह से। और उस प्रोसेस से क्या होता है कि स्पंज का पानी जो है, स्पंज में जो पानी है, सबसे नीचे जो स्पंज है उसमें जो वाटर है वो नेचुरली राइज होता है टुवर्ड्स द ड्राई टिश्यू पेपर। इन दैट प्रोसेस जितना भी जेल में, जितना भी इस जेल वाले पार्ट में जितना भी डीएनए है, it gets stuck or it get transferred on to the, you can see, nitrocellulose membrane. Okay, so as a result DNA membrane get transferred या blotted, इसी को blotting कहते हैं, to the nylon membrane यहाँ पे हो रहा है। ओके, तो ये जो आपका दिख रहा है, तो क्या हो गया, because of the blotting action the DNA which is present in gel gets lifted and get transferred to the, you can see what, आपका nitrocellular membrane जो यहाँ पे ग्रीन से दिख रहा है। ओके, so this process is called southern blotting. Now, तो अल्टीमेटली आपने क्या किया कि जेल के जरिए आपने डीएनए के सारे फ्रेगमेंट्स को अलग किया, फिर उसको नायलॉन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर दिया। अब इन नायलॉन मेम्ब्रेन पे जितने भी डीएनए हैं उसमें से आपको वीएनटीआर वाले फ्रेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए फिर कॉरस्पॉन्डिंग डीएनए प्रोब तैयार किया जाता है। ओके, तो सिलेक्शन ऑफ द डीएनए प्रोब टू आइडेंटिफाई द डीएनए फ्रेगमेंट्स विद वीएनटीआर। तो डिपेंडिंग अपॉन आप किस वीएनटीआर को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो उसके हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग आपको डीएनए प्रोब बनाना है, और वो प्रोब स्पेशल होता है, उसको रेडियो एक्टिव बनाया जाता है बाय एडिंग द रेडियो लेबल। तो एक नोन सीक्वेंस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली और फ्रॉम सम अदर बायोलॉजिकल सोर्स, उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करके तैयार किया जाता है। तो ये है सिंगल स्ट्रैंडेड, दिस इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, और यहाँ पे नेचुरली उसको रेडियो लेबल किया गया है, एक रेडियो एक्टिव यू कैन सी व्हाट मॉलिक्यूल अटैच किया गया है। ओके, सो दिस इज रेडियो लेबल डीएनए प्रोब, इसको कहते हैं डीएनए प्रोब। ओके, प्रोब मतलब एनीथिंग विच चेक्स, एनीथिंग विच मार्क्स। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब कैसे ऑब्टेन होता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म और प्रिपेयर्ड बाय कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रिपरेशन। ओके, यानी कि आपका एमआरएनए से ये तैयार किया जा सकता है, तो अलग अलग मेथड है, सिंथेटिकली तैयार किया जाता है। ओके,
and this SS single stranded, SS मतलब single stranded DNA probe is labeled with radio isotopes, radioactive isotope, because this should release the radiation, क्योंकि ये radiation नेचुरली जब रिलीज करेंगे तो ही एक्सरे पे मार्क आ जाएगा, ओके, या उस पे उस हिस्से का क्या है, स्टैंप आ जाएगा. Now, so this single-stranded DNA probe will bind specifically with DNA fragment having specific VNTR. तो आपका DNA probe डिपेंड करता है आप किस टाइप के VNTR को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ओके. तो सपोज एग्जांपल दिया है, सपोज दिस इज द DNA फ्रेगमेंट, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड DNA फ्रेगमेंट है. इसके पास जो VNTR है वही जो हमने इनिशियल एग्जांपल में लिया था GATA. तो इसके पास देखिए एक GATA है. तो इस सिंगल स्टैंडर्ड DNA फ्रेगमेंट के साथ नेचुरली एक दूसरा सेगमेंट चिपक सकता है डीएनए का, जो है CTAT. C will bind with G, T will bind with A will bind with T and T will bind with A. ओके, यानी कि आपके सपोज आपके पास 4 डीएनए फ्रेगमेंट है, उसमें से एक फ्रेगमेंट में GATA है, तो इसी फ्रेगमेंट के साथ आपका ये सिंगल डीएनए रेडियो लेबल्ड प्रोब, तो इसको येलो किया है, मतलब इसको रेडियो एक्टिव बनाया है, ओके. तो इट विल गेट बाउंड, ओके, ये बाइंड हो जाएगा. नाउ तो बाइंड होने के बाद जो डीएनए तैयार होगा, क्योंकि सेपरेटेड जो वैकेंसी बैंड्स है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड वैकेंसी डीएनए है, और आपको वीएनटीआर वाले डीएनए फ्रेगमेंट के साथ डीएनए प्रोब को जोड़ना है, जो आपने कर चुके हैं, उससे हाइब्रिड डीएनए तैयार होता है, ओके. सो द नाइट्रोसेल्युलोज पेपर जिसपे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है उसको नेचुरली रेडियो लेबल डीएनए प्रोब से फ्लड किया, मतलब पूरा भिगा देते हैं, ओके, सबमर्ज्ड इन दैट. और फिर होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है आपका सिंगल डीएनए, यू कैन सी व्हाट, ये है डीएनए फ्रेगमेंट, और इस डीएनए फ्रेगमेंट जो वीएनटीआर है उसका कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपका डीएनए प्रोब्स है, ओके. तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब क्या होगा, इट विल हैव द कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस ऑफ द होस्ट डीएनए स्ट्रैंड, जो अभी मैंने आपको बताया. तो दिस इज सिंगल स्टैंडर्ड फ्रैगमेंट, तो दिस फ्रैगमेंट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रैगमेंट. इसको आपको आइडेंटिफाई करना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग आपको डीएनए प्रोब्स तैयार करना है, व्हिच हैज बीन प्रिपेयर्ड, ओके, जो रेडियो लेबल्ड है. तो दूसरा एग्जांपल है, देखो नीचे आपके 3 यू कैन सी डीएनए फ्रैगमेंट्स है, ओके, और आपको इनमें से उस फ्रैगमेंट को आइडेंटिफाई करना है जिसमें आपका वीएनटीआर है. तो जो थर्ड फ्रैगमेंट दिख रहा है इस पे वीएनटीआर है, तो यू हैव टू मेक द कॉम्प्लीमेंट्री रेडियो एक्टिव प्रोब डीएनए. तो ये हमने बनाया है आर्टिफिशियली, या दूसरे ऑर्गेनिज्म से हम लोग क्या है इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके. और फिर तो दिस विल एक्चुअली बाइंड, तो दिस इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रैगमेंट. ये 3 डीएनए फ्रैगमेंट है, उसमें से एक फ्रैगमेंट में आपका वीएनटीआर है, तो वीएनटीआर को आइडेंटिफाई करने के लिए वी गॉट दिस डीएनए प्रोब, और वो बाइंड हो गया इधर. दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड हाइब्रिड डीएनए. तो हाइब्रिड डीएनए किसका बनता है, इट हैज वन पार्ट दैट इज द वीएनटीआर फ्रैगमेंट एंड दूसरा पार्ट इज द प्रोब. तो ये जो सर्कल वाला यू कैन सी कॉम्बिनेशन है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसमें यू गॉट द गिवन डीएनए फ्रैगमेंट हैविंग वीएनटीआर, उसके साथ आपका डीएनए प्रोब बाइंड हो गया है, तो इससे एक हाइब्रिड डीएनए तैयार हो गया है, ओके. और बाकी का नेचुरली आफ्टर दिस यू कैन सी वी हैव टू ड्रेन, जो एक्सेस यू कैन सी डीएनए प्रोब फ्रैगमेंट है उसको फिर वॉश ऑफ कर देते हैं. तो आपके जो जेल है, जो आपका नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन है या नायलॉन मेम्ब्रेन है, उस पे खाली अभी क्या होगा, उसके होगा अनलेबल्ड. तो ये फ्रैगमेंट जो हो गए अनलेबल्ड हो गए, और ये फ्रैगमेंट क्या है आपका लेबल्ड हो गया है. तो अभी आपको किस लेबल्ड फ्रैगमेंट को आइडेंटिफाई करना है, उसको एक ऐसी फोटोग्राफ लेना है, क्योंकि जहां जहां पे ये रेडियो लेबल्ड प्रोब अटैच रहेगा वो रेडिएशंस प्रोड्यूस करेगा, ओके, और इसी रेडिएशन को हमको क्या है डिटेक्ट करना है. तो दिस इज द नायलॉन मेम्ब्रेन जिसमें हाइब्रिड डीएनए है, ओके. लेकिन अभी समझ नहीं रहा है कि कहाँ पे हाइब्रिड वाला है कहाँ पे नहीं है. तो एक तरीका है दैट इज द फ्लोरेसेंट. तो एक नया टेक्निक है जिसमें डीएनए बैंड्स को क्या करते हैं अंडर अल्ट्रावायलेट रखा जाता है, तो उससे फ्लो होता है. अभी अगर ध्यान से दिख रहे हैं अपना, तो यहाँ पे देखिए ये जो ग्लो है, दिस ग्लो ग्लिस, तो ये जो ग्लो है, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव वाले जो यू कैन सी फ्रेगमेंट्स है, ओके, क्योंकि यहाँ पे आपका डीएनए प्रोब क्या है अटैच हो गया होगा, तो वो ज्यादा ग्लो कर रहा है. यानी कि 1 2 3 यहाँ पे है, फिर ये है, फिर 1 2 3 यहाँ पे, ये ज्यादा ग्लो हो रहा है, मतलब दे आर द डीएनए सेगमेंट्स हैविंग वीएनटीआर अटैच विद डीएनए प्रोब, बिकॉज दे विल ग्लो डिफरेंटली, ओके. तो आपको दिख रहा है ये जो ग्लो है इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग ग्लो. तो दिस इज द फ्लोरेसेंट टेक्निक जिससे सारे डीएनए बैंड्स को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ओके. तो फिर टर्मिनल है फोटोग्राफी. तो आउट ऑफ ऑल दीज बैंड्स वी हैव टू आइडेंटिफाई द VNTR, you can see what bands. तो उससे परमानेंट डीएनए फिंगरप्रिंट मिलेगा. तो क्या करते हैं कि उसी ये आपका नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर पेपर के ऊपर एक्सरे फिल्म रखा जाता है, ओके.
तो आपके यू कैन सी जो नाइट्रोसोलस पेपर है उसमें हाइब्रिड डीएनए बैंड्स है वीएनटीआर कौन कौन से है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सरे फिल्म पे एक्चुअली वो प्रिंट यू कैन सी आ जाएगा। ओके, तो दिस एक्सरे फिल्म is kept and it is kept in dark room। तो अल्टीमेटली जो एक्सरे फिल्म का वो पार्ट जहाँ पे रेडिएशन उसको मिल रहा होगा वो क्या होगा, ग्लो करने लगेगा। एंड नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ द hybrid DNA bands। Okay, तो यानी कि out of all the you can see DNA fragment which were actually separated, now we obtained only the bands which contain VNTR। Okay, दिस इज द फाइनल डीएनए फिंगरप्रिंट। तो ये आपका एक पर्सन का डीएनए फिंगरप्रिंट आपको मिल गया है और उसको फिर आप दूसरे सैंपल से कंपेयर कर सकते हो। खाली कंडीशन है जिस टेक्निक से आप एक सैंपल को एनालिसिस करेंगे उसी टेक्निक से, उसी मेथड से, उसी टाइप का आरएन चाहिए, उसी थिकनेस का जेल वैकेंसी चाहिए, तो और बाकी सारे फैक्टर एकदम सेम होना चाहिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस का टाइम सेम होना चाहिए, द टाइप ऑफ डीएनए प्रोब वो सेम होना चाहिए, तब जाके आपको क्या है सेम पैटर्न का क्या है डीएनए बैंड्स मिलेगा। तो चलिए अभी समरी देख लेते हैं। तो दिस इज द समरी विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि डीएनए सैंपल इज टेकन, इसमें से सॉरी द बायोलॉजिकल सैंपल इज टेकन, उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया, तो यू गॉट द आइसोलेटेड प्यूरिफाइड डीएनए। फिर उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के जरिए अलग अलग पीसेस में क्या है कन्वर्ट कर दिया है, उसके फ्रैगमेंट्स किए और देखिए हर फ्रैगमेंट का साइज अलग अलग है। फिर उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस, दिस इज द जेल, और उसमें ये सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स को यहाँ पे इस जगह पे लोड करते हैं और जब इलेक्ट्रिक करंट वैकेंसी पास किया जाता है तो ऑल द डीएनए फ्रैगमेंट्स स्टार्ट वैकेंसी मूविंग एंड दे मूव विद द डिफरेंट स्पीड डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट। और इसमें जितने भी बैंड्स अभी सेपरेट होंगे, ओके अभी आपको समझाएंगे नहीं, तो उसको क्या करते हैं ब्लॉटिंग करते हैं। तो येलो कलर का जो आपको दिख रहा है दैट इज द नायलॉन मेम्ब्रेन, तो उस पर ट्रांसफर हो जाता है बाय द ब्लॉटिंग टेक्निक जो हमने अभी पढ़ा, उसके ऊपर फिल्टर पेपर रखा जाता है और फिर इस येलो पेपर जो आपका नायलॉन पेपर है जिसमें आपका डीएनए बैंड्स है, सारे के सारे फ्रैगमेंट सेपरेट हुए हैं, उस पर फिर डीएनए प्रोब डाला जाता है। यू कैन सी द पार्टिकल्स जो आपको दिख रहे हैं दे आर द डीएनए प्रोब्स, दे आर रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब्स। तो ये वहां पे चिपकेगा जहां पे आपका वीएनटीआर फ्रैगमेंट्स है। फाइनली जब एक्सरे लिया जाता है तो देखिए कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इन 6 रीजन्स में जो डीएनए है उनके पास VNTR है एंड दे आर गॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ओके, तो स्टैंडर्ड जो तरीका है उसमें 6 यू कैन सी बैंड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रोसेस को नेक्स्ट वीडियो में आपको और डिटेल में यू कैन सी बताऊंगा एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, कि किस तरह यू कैन सी हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट यूज करके एक चाइल्ड के असली फादर, बायोलॉजिकल मदर या कोई पर्सन का अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, चलिए तो दिस इज द समरी फॉर यू, तो यू कैन टेक द नोट्स फॉर दिस। तो अगर आपको यू कैन सी शॉर्ट में पूछा गया तो दिस आर द यू कैन सी व्हाट पॉइंट्स यू कैन राइट। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो डीएनए आइसोलेशन है, फिर डीएनए एम्प्लीफिकेशन, फिर रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, उसको डीएनए फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सदर्न ब्लॉटिंग, सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब, उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन और लास्ट में द फोटोग्राफी टू आइडेंटिफाई ओनली दोज बैंड विच कंटेन VNTR बॉन्डेड विद द डीएनए प्रोब, क्योंकि डीएनए प्रोब रेडियो एक्टिव होने की वजह से इट विल release the radiation and it will mark on the you can see X-ray films। चलिए अब देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एनालिसिस कैसा होता है। तो अभी शॉर्ट में आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, नेक्स्ट टाइम यू कैन सी द सेपरेट वीडियो दिस एनालिसिस पार्ट विल बी डिस्कस्ड। ओके, सो दिस इज द यू कैन सी एनालिसिस। तो अलग अलग सैंपल्स के डीएनए को देखिए, ये फ्लोरेसेंट तरीका है। ओके, इसमें फ्लोरेसेंस भी है, साथ में कैसी एक्सरे फिल्म को, तो इससे ज्यादा एक्यूरेट क्या है आपको आइडेंटिफिकेशन करने को मिलता है। तो दिस आर द हाइब्रिड डीएनए जो ज्यादा ग्लो कर रहे थे, द हाइब्रिड डीएनए, जहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको डीएनए यू कैन सी व्हाट दिखेगा। ओके, फ्रैगमेंट्स है लेकिन दे आर लेस यू कैन सी प्रोमिनेंट। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को I will explain you in next video so that we'll understand how DNA fingerprinting is used to identify the person। okay, तो यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ कि एक क्राइम सीन पे आपको एक सैंपल मिला। ओके, सैंपल मिला है। ओके, और वो सैंपल किस कल्प्रिट का है, मतलब जिसने यानी क्राइम किया होगा, और देयर आर 2 पर्सन ओके विच आर सस्पेक्ट। ये सस्पेक्ट 1 है, तो दिस इज द डीएनए ऑफ द सस्पेक्ट 1। और आपको इसमें कितना दिख रहा है कि ओनली नॉट ऑल द डीएनए यू कैन सी हैज द VNTR। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 2 और क्रोमोसोम नंबर 16 इन्हीं के VNTR को एनालिसिस किया गया है। ओके,
तो इन द सेम वे इंडिविजुअल बी के भी क्रोमोसोम नंबर 16, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 7 इसके वीएनटीआर को एनालिसिस किया गया है। ओके, आपको देख रहा है कि इन बोथ द केसेस द वीएनटीआर पैटर्न इज डिफरेंट। और अगर ध्यान से देखोगे तो क्राइम सीन में जो डीएनए मिला उसका जो वीएनटीआर पैटर्न है वो सेकंड इंडिविजुअल से मिल रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है। और उसको जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक से हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो सेम रिजल्ट आता है कि जो आपका क्राइम सीन में जो डीएनए पैटर्न वीएनटीआर के डीएनए पैटर्न्स दिख रहे हैं वो आपका सस्पेक्ट बी से एकदम मैच हो रहा है। ओके, यू कैन सी 1 to n मैच हो रहा है, यानी कि क्राइम सीन में जो ब्लड या जो भी सैंपल मिला वो आपका इंडिविजुअल बी का है। इसका मतलब है दिस पर्सन मस्ट बी द क्रिमिनल। ओके, तो इसको मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए अब देखते हैं इंडियन कंट्रीब्यूशन क्या है, कि जो टेक्निक अभी आपको दिख रही थी वो हमारे कैन सी इंडिया में डेवलप किया बाय लालजीत सिंह। ओके, तो अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर। तो ही डेवलप द टेक्निक जिसमें उन्होंने जो रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब यूज किया, इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाई क्रोमोसोम ऑफ फीमेल बैंडेड क्रेट स्नेक। तो फीमेल बैंडेड क्रेट स्नेक के मिनी सैटेलाइट से उन्होंने डीएनए प्रोब ऑब्टेन किया, यानी कि ये डीएनए प्रोब जिस वीएनटीआर को आइडेंटिफाई करता है उसी वीएनटीआर को हम लोग एनालिसिस करते हैं, क्योंकि अलग अलग डीएनए प्रोब अलग अलग वीएनटीआर को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो दिस यूनिक सेगमेंट ऑब्टेन फ्रॉम दिस क्रोमोसोम उसको बैंडेड क्रेट मिनी सैटेलाइट भी कहते हैं। जैसे मैंने बोला, इसे बोला कि यू कैन सी एक टाइप के वीएनटीआर से हम लोग दूसरे वीएनटीआर को क्या है आइडेंटिफाई करते हैं, कि अगर उनका कैन सी जो ये है अपना बेस पेयर दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टुवर्ड ईच अदर। चलिए अब देखते हैं एप्लीकेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेसिक एप्लीकेशंस क्या है। तो मैंने आपको पहले बताया ये जो टेक्निक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से डीएनए एनालिसिस का जो टेक्निक डेवलप हुआ, इसी से हम लोगों को जीन्स और जीनोम, यानी कि इंस्टेड ऑफ जस्ट इमेजिन कि सेम थिंग सेम टेक्निक, विद द सेम टेक्निक वी कैन रिमूव द जीन्स फ्रॉम द कैन सी डीएनए। ओके, तो उससे जीनोमिक्स स्टडी कर सकते हैं, जीन बैंक तैयार कर सकते हैं, और जीनोम प्रोजेक्ट्स, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। देन फॉरेंसिक मेडिसिन टेक्निक, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबसे ज्यादा जो फेमस है, इट इज बिकॉज ऑफ द कैन सी अननोन को यू कैन सी फाइंड करने के लिए। ओके, जिसको फोरेंसिक मेडिसिन टेक्निक भी कहते हैं। तो उसमें है टू आइडेंटिफाई एन अननोन पर्सन, चाहे वो डेड है लिविंग, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो एस्टैब्लिश पेरेंटेज, मतलब बायोलॉजिकल फादर कौन है या बायोलॉजिकल मदर कौन है, या दोनों एक यू कैन सी बच्चे का कौन है। तो टू सेटल इंश्योरेंस क्लेम, कभी कभी एक पर्सन आफ्टर हिज डेथ उसके यू कैन सी जो प्रॉपर्टी है उसके लिए बहुत सारे रिलेटिव्स आ जाते हैं, तो यू हैव टू फाइंड द क्लोजेस्ट ब्लड और जेनेटिक रिलेटिव। कभी कभी फेक पर्सन भी आते हैं, तो उसके लिए डीएनए मैचिंग की जाती है। और क्राइम डिटेक्शन में स्पेशली अबाउट द रेप एंड कॉम्प्लिकेटेड मर्डर केस में नेचुरली यहाँ पे सैंपल बहुत ही, या तो बहुत ज़्यादा सैंपल्स मिल रहे हैं, ओके, या तो एक सैंपल इज वेरी लेस, करेक्ट नो, एंड देयर आई कैन सी सो मेनी डिफरेंट यू कैन सी व्हाट कंफ्यूजन्स। तो वहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बिकम्स द की टूल टू आइडेंटिफाई द कल्प्रिट। देन टू स्टडी द जेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये देखा था कि बिकॉज ऑफ एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से सारे जीन्स जब आइडेंटिफाई हो, उनके सीक्वेंसेस मालूम पड़े, तो मालूम पड़ा, तभी मालूम पड़ा 99.9% डीएनए हर इंडिविजुअल का, ह्यूमन इंडिविजुअल का सेम रहता है, 0.1% का ही डिफरेंस है। और अगर ह्यूमन के जीनोम को दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करेंगे तो फिर जैसे एप्स में 98% सिमिलरिटी है, 2% का डिफरेंस है। तो इस तरह हर एनिमल का दूसरे एनिमल के साथ, एक प्लांट का एनिमल के साथ, डिफरेंट प्लांट्स का डिफरेंट प्लांट के साथ जो जेनेटिक रिलेशनशिप है, जीन में जो डिफरेंस है, उसको हम लोग इसी टेक्निक से हम लोग स्टडी भी कर सकते हैं। क्योंकि जेनेटिक पैटर्न सबका क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। अगर ज़्यादा सिमिलर है तो जेनेटिक पैटर्न, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पैटर्न सेम रहेगा। एग्रीकल्चर साइंस में वी कैन एक्चुअली हेल्प टू आइडेंटिफाई द हाइब्रिड क्रॉप्स, सेम कैन बी फॉर इन एनिमल्स ने, हाइब्रिड एनिमल्स वो किससे रिलेटेड है, एक्यूरेटली किससे रिलेटेड है, ओके, जेनेटिकली उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और फिर द पेडिग्री एनालिसिस, यानी कि ह्यूमन का जो पूरा डेवलपमेंट है, जैसे बोलते हैं मंकी से एप लाइक एनिमल्स बने, एप लाइक एनिमल से भी अलग अलग स्टेजेस से ह्यूमन डेवलप, तो सारे स्टेजेस के हम लोग डीएनए को एनालिसिस कर सकते हैं। डॉग, कैट, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका इससे आइडेंटिफाई होगा कि उनका डेवलपमेंट एग्जैक्टली किस सीक्वेंस में हुआ है। Then what are the other application, देखिए क्राइम सीन में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन रिलेटेडनेस में ह्यूमन रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ओके, पैटर्निटी मतलब हु इज द रियल फादर ऑफ दैट पर्सन, एनिमल रिलेटेडनेस, एनिमल के बीच का जेनेटिक रिलेशन, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी मतलब ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसको स्टडी, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे अभी हमने कैन सी जो टेक्निक सबसे पहले कोरोना वायरस के लिए डेवलप किया वो पीसीआर टेक्निक्स है। उसमें भी क्या है एक्चुअली आरएनए से डीएनए बनाते हैं, डीएनए से आरएनए बनाते हैं, और उसको कंपेयर किया जाता है। फिर फूड को आइडेंटिफाई करने के लिए ह्यूमन रिमेन्स, ओके, जैसे बॉडी पार्ट, कभी सीवियर एक्सीडेंट होता है, बॉडी पार्ट गेट्स यू कैन सी
इंटायर बॉडी जो है मिलेगा नहीं, उसके पीसेस मिलते हैं, उनको सबको आइडेंटिफाई करना है कि, है ना, कि सारे पीसेस 10% का अगर पूरी तरह बॉडी पार्ट डैमेज हुआ है तो हर पार्ट जो है वो इकट्ठा करना है। फिर मॉनिटर द ट्रांसप्लांट। ओके, ट्रांसप्लांट जब एक पर्सन को किडनी डोनेट किया जाता है तो उसके बाद में नेचुरल टिश्यू का डीएनए टेस्ट किया जाता है। ज़्यादा जितना ज़्यादा वो सिमिलर रहेगा उतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस होगा। अगर डीएनए में फर्क है तो नेचुरल एक्सेप्टेंस होने का चांस क्या है, कम रहता है। ओके स्टूडेंट्स, with this we have completed the chapter. Okay, we will meet soon with the next topic. Okay, तो next topic अपना यही है कि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है, इसको मैं थोड़ा और अलग तरीके से, ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से, ओके, डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा फ्रॉम द एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ एंड सी यू सून इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, और जरूर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और नेचुरली सब्सक्राइब कीजिए। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।